students, this is Atul Rana and I am going to begin this 11th video lecture for the 12th chemistry. Okay, so today we will be studying this colligative properties. Okay, so first we will discuss what are colligative properties. Okay, and what are the types of colligative properties we are going to discuss in this class. Okay, so starting with colligative properties. Colligative properties. Colligative properties. Okay, first we will discuss the colligative properties. That what are colligative properties? Okay, ठीक है. जैसे वेपर प्रेशर है, आई से दैट वेपर प्रेशर इज अ colligative property. हाउ? ठीक है, देखो क्या था, तुम्हारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, तुम्हारे पास यू हैड अ प्योर सॉल्वेंट. ओके, so on the surface of that solvent all the molecules were of the solvent only. Okay, so all the molecules escaping out of the solvent in the form of vapor were of the pure solvent only. Okay, suppose I added some solute in the solvent. So on the surface of this solvent, some of the molecules will be of solute also. So vapor pressure of that solvent will get decreased. Okay, so vapor pressure is a colligative property, because when you add, in the Rhodes law you have studied also that when we add solute in the solvent, its vapor pressure decreases. Okay, so all the properties which depend upon the amount of solute are called as colligative properties. Okay, which are influenced by the amount of solute. Properties which depends upon the amount of solute present in the solution are called as colligative properties. Okay, understood? Simply वो किस पे डिपेंड करती हैं? अगर सोल्यूट बढ़ा दोगे तो colligative property कोई भी सकती है, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, दिस एंड दैट क्या होती है, दैट वी विल स्टडी इन द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस. बट फर्स्ट डेफिनेशन ये है colligative properties हैं क्या. ठीक है, दे डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे. प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड एज colligative properties. सोल्यूट बढ़ा दोगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और सोल्यूट घटाने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज colligative property. So first write down the definition colligative properties. Okay, properties which depend upon the amount of solute. Properties which depend upon the amount of solute, ये याद रखना है, amount of solute present in the solution. Amount of solute present in the solution are called as colligative properties. Okay, solute अगर बढ़ा दोगे तुम solution में तो ये property की वैल्यू चेंज हो जाएगी, solute घटा दोगे तो property की वैल्यू चेंज हो जाएगी. Okay, so these properties which depend upon the amount of solute are called as colligative properties. There are 4 colligative properties which we are going to study in class 12 chapter solutions. Okay, so the first colligative property which we are going to study is relative lowering of vapor pressure. ओके, ये क्या होता है, हम बाद में इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसको शॉर्ट फॉर्म में वी राइट एज RLVP, relative lowering in vapor pressure. Second colligative property will be this elevation in boiling point. Okay, third colligative property which we will study in this chapter is depression in freezing point. Okay, and the fourth property we will study is osmotic pressure. Fourth property which we will study is osmotic pressure. Got it? So relative lowering of vapor pressure या relative lowering in vapor pressure. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को. वेपर प्रेशर किसी प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, उसमें तुम जैसे सोल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसमें जैसे तुम सोल्यूट डालोगे वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा चला जाता है, प्रॉपर्टी चेंज होगी. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, उसमें जैसे तुम सोल्यूट डालोगे, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा. मान लो कोई सॉल्वेंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज करता है, उसमें तुम क्या डालोगे, क्या डाल दो, उसमें तुम मान लो क्या बोलते सोल्यूट डाल दो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा. का मतलब जो 0 डिग्री पहले फ्रीज हो जाएगा, जो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा वो 1 डिग्री में फ्रीज होना शुरू कर जाएगा. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? I will tell you. Okay, one by one we will start with relative lowering of vapor pressure. First colligative property, second is elevation in boiling point, third is depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. Okay, so board class में maximum जो 60-70% questions आते हैं इन्हीं के numericals आते हैं. Okay, so we will having a numerical session on these properties also. Plus, I will explain you first these properties. Theoretical portion will be covered, and then 1-2 this lectures I will devote for the numerical portion of all these properties. Okay, clear? So write it down. तब तक मैं इसको erase कर लेता हूँ. Okay. So there are 4 colligative properties: relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, depression in freezing point, elevation in boiling point, and osmotic pressure. Okay, so एक एक करके सबको पढ़ेंगे. So today I have arranged a new setup for you. बड़ी मुश्किल से setup arrange हुआ है. For the studies we are going to do anything. For the studies part we are going to do anything. Okay, I am working hard. So you also pay attention for this portion. Okay. Okay. So we will start with the first colligative property, that is RLVP. RLVP. Relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. ठीक है. पहले मैं आपको उसका क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना दूंगा कि कैसे होता है. इस तरफ देखो. This is pure solvent A. Okay, this is pure solvent A. ये pure solvent A था. ठीक है. ओके, सरफेस के ऊपर जितने भी वेपर्स थे 3, 4, 5, सरफेस के ऊपर सपोज देयर वर 5 मॉलिक्यूल्स. 5 के 5 मॉलिक्यूल किसके थे? A के थे. दिस इज प्योर सॉल्वेंट A. दिस इज प्योर सॉल्वेंट. दिस इज प्योर सॉल्वेंट. ओके, सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल थे. 5 के 5 किसके थे? A के थे. They will convert into vapors and exert pressure. They will convert into vapors and exert pressure. Okay. So here in this case, vapor pressure is exerted by 5 molecules of A. 5 molecule A के vapor pressure लगा रहे हैं. This is in the pure solvent. When it is a pure solvent. Okay. यहाँ पे vapor pressure कितने molecule लगा रहे हैं? 5 molecules. 5 molecule हैं A के, वो vapor बन के pressure लगा रहे हैं. ठीक है. अब हमने क्या किया? इस प्योर सॉल्वेंट में B मिक्स कर दिया. हमने क्या किया? इसमें B मिक्स कर दिया. इट इज A प्लस B. नाउ इट इज अ सॉल्यूशन. अब A अकेला नहीं, इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मींस जो वेपर नहीं बनाता है. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, वेपर नहीं बनाता है. अब मान लो सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल है. 1 2 3 4 5. सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल हैं. 3 तो A के होंगे, तो इसमें से हो सकता है 2 B के भी हों. B के भी कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे ना. तो अर्लियर ऑल द 5 मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द दिस लिक्विड, सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट वाज ऑफ A ओनली व्हेन इट वाज इन प्योर फॉर्म. पर जैसे इसमें सोल्यूट डाला गया, 5 में से 3 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे, 2 सोल्यूट के रह जाएंगे. तो अब वेपर प्रेशर कितना लगाएंगे? अब वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल लगाएंगे? ओनली 3 मॉलिक्यूल्स. तो वेपर प्रेशर ज्यादा किस केस में होगा? इस केस में. इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मोर. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मोर. तो सोल्यूट डालने से किसी सॉल्वेंट का, ठीक है, कोई लिक्विड ए था, सोल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. सोल्यूट डालने से इस लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या कम हो गया? ठीक है. सो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके. सो वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. पहले जब सोल्यूट नहीं था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था. जैसे ही उसमें सोल्यूट डाला गया तो उसने क्या किया? वेपर प्रेशर को चेंज कर दिया, कम कर दिया. सो एनीथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. जैसे सोल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. सो दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, अब ये तुमने बना लिया है, इसको बना लो. ये तुम समझ गए कैसे हुआ. अब इसका मैं डायग्राम साथ में बनाऊंगा. इसका क्या बनाऊंगा मैं? डायग्राम मैं इसी का साथ में बनाऊंगा. उसके बाद आई विल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. फर्स्ट आई विल डू द डायग्राम, देन आई विल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, डायग्राम देख लो तो कैसे बनेगा. सपोज ऐसे था, एक तरफ था वेपर प्रेशर, ठीक है, एक तरफ से टेम्परेचर.
एक तरफ था टेम्परेचर, ओके, एक तरफ था टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था, जैसे मान लो ये सोल्यूट है, ठीक है, ये सोल्यूट है, सोल्यूट सॉल्वेंट है पहले, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ए मतलब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना आ रहा था, मान लो इतना आ रहा था। फिर जब हमने इसमें ए प्लस बी कर दिया, जब हमने इसमें ए पर बी कर दिया, टेम्परेचर उतना ही है, देख लो टेम्परेचर उतना ही है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ये डॉट दिखा रहा है सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट से कम है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, मान लो 0, 0.5, 1, 1.5, 2, ठीक है। टेम्परेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस। सपोज टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और वेपर प्रेशर माप रहे एटमोस्फेयर में, ठीक है, या बार में माप रहे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर माप रहे हैं, बार में माप रहे हैं, किसमें माप रहे हैं, बार में, ठीक है। अब देखो 40 डिग्री टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ए का ज्यादा हुआ या ए प्लस बी का, टेम्परेचर सेम है, फिर भी टेम्परेचर सेम होने के बाद भी ए जो प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, सपोज कर रहा हूं मैं, जो ए प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 2 बार, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 1 बार, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में देयर विल बी वन सोल्यूट, सॉल्यूशन में क्या है सोल्यूट ऐड है, ओके। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब ए प्योर है तो उसके वेपर प्रेशर को लिखेंगे पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए लिखेंगे। और जब ए सॉल्यूशन फॉर्म है तो उसके वेपर प्रेशर को लिखेंगे पी ए। व्हेन ए इज इन द प्योर फॉर्म वी राइट पी नॉट ए, फॉर द प्योरिटी वी राइट नोट। When A is alone, it is not mixed with solute, we write P node A. When A is mixed with solute, means its partial vapor pressure is there. Partial vapor pressure means when a group of gases are exerting pressure, then individual pressure in that group is called as partial pressure. तो यहाँ पे A और B में इसका partial pressure कितना बनेगा, PA बनेगा। और जब ये अकेला होगा, pure form में होगा तो partial pressure होगा तो P node A. Remember this, P node A and PA. Okay. Now, अब देखो जो change in pressure हुआ, जो चेंज इन दिस पार्शियल प्रेशर आया, मतलब प्रेशर पहले कम ज्यादा था फिर कम हो गया, वो किसकी वजह से आया, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी, डेल्टा पी मींस चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर किसकी वजह से आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की वजह से। दीज ब्रैकेट शो कॉन्सेंट्रेशन, इन ब्रैकेट का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चेंज इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से आया, सोल्यूट की वजह से। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में मतलब कॉन्सेंट्रेशन मात्रा, उसकी मात्रा बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर और लो जाता जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, व्हाट यू से, इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दैट इज द पॉइंट। सोल्यूट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, इसको इक्वल टू में लिखो। जितना वेपर प्रेशर कितना फर्क होगा, जितनी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को हम किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, मोलैरिटी में, नॉर्मैलिटी में, मोल फ्रैक्शन में। सो हियर वी विल यूज चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फॉर सोल्यूट, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग इन मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, ओके। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, व्हाट विल हैपन, P not A, because it is constant. I have told you earlier also कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर बीकर सेम लेते हो, ठीक है, चाहे तुम अभी करो या 10 मिनट बाद करो, अगर बीकर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो सरफेस के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे, 5 ही आएंगे। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी वी कैन टेक दिस एज कांस्टेंट, ओके, xb, okay. So what will happen, delta P upon P naught A is equal to xb, xb, okay. So what is this, what is this, it was the original vapor pressure, or ye this is the vapor pressure after adding solute, this was the original vapor pressure,
vapor pressure of the solute in the solvent in the evening. This is the vapor pressure after adding solute. तो ये जो वेपर प्रेशर है ये कम हुआ है और ये असली वाला है. सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कि पहले कितना था और बाद में कितना कम हो गया, बाद में कितना फर्क पड़ गया, पहले कितना था बाद में कितना फर्क पड़ गया. सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा P अपॉन PA दिस कैन बी कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. व्हाई? पहले कितना था और बाद में कितने का फर्क पड़ गया. सो दिस इज RLVP, relative lowering of vapor pressure. This is relative lowering of vapor pressure. तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक और. So relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of B is equal to mole fraction of B. So mole fraction of B you can write as number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. This is the definition of mole fraction. Okay. If Na is far greater than Nb, अगर Na के मोल्स उससे बहुत ज्यादा है तो हम Nb को निग्लेक्ट कर देते हैं. इस केस में हम Nb को निग्लेक्ट कर देते हैं, इस वाले को निग्लेक्ट कर देंगे. दोनों को मान लो इसके मोल्स हैं 0.999 और इसके मोल है 0.001, तो दोनों को प्लस करके ऑलमोस्ट इक्वल आंसर आएगा ना. तो अगर इसके मोल बहुत ज्यादा है इसके बहुत कम है तो प्लस करते वक्त इसको इग्नोर कर देते हैं. तो इसको इग्नोर कर दिया हमने. ठीक है. सपोज Na के मोल से 0.9999 और Nb के मोल से जो उससे बहुत कम थे 0.0001, दोनों को प्लस करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आएगा ना. सो वी कैन व्हाइल एडिंग इफ Na is too much larger than Nb, so we can ignore Nb. Okay, ignore कर दिया. RLVP क्या गया? Nb upon Na. अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाओ. क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या गया? दिस गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके. सो दिस इज RLVP. दिस इज RLVP. जनरली तुमसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा होता है क्वेश्चंस में. मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा होगा तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या बैठेगा? Wb into Ma into RLVP. RLVP नीचे रहेगा मल्टीप्लाई बाय Wa. So this will be the formula for what is it? Molar mass in case of relative lowering of vapor pressure. Got it? So this is all the first property, that is relative lowering of vapor pressure.